students, in the last lecture we have learnt about motion, few physical quantities, distance, displacement, speed, velocity, acceleration that we are going to learn in this chapter, as well as we have learnt about scalar quantities and the vector quantities. We have small something discussed about the magnitude, direction, distance and displacement. So, the scalar quantity means the quantity which require only magnitude for the complete description, whereas vector quantity requires magnitude as well as direction for the complete description. Scalar quantity only requires magnitude, whereas vector quantity requires magnitude as well as direction for the complete description. So, now in detail we are going to learn about distance and displacement. So, what is the distance? Distance is a total path length. We have also discussed in the last lecture that distance and displacement are quite similar topics. They are not the one and the same thing, but they are quite similar to each other. The distance is the total path length, that the path you are traveling, the total length of that path is known as distance, and displacement is the smallest distance between your first and last position. Displacement is the smallest position of your first and last position. So, let us discuss here about distance and displacement. Suppose you are here on position A. Position A is, for example, school. Clear? And now for position B. Now, this is the position B, that is your home. That is your home. Clear? So, now you want to go from school to home, from position A to position B. So, this is your first position and this will be your last position. So, from school you are moving to somewhere to your friend's house. So, this is your friend's house. Clear? Friend's house. So, from there you are moving to the another direction, you are roaming in the whole city, gaye, वापस घूमे, घूमते रहे, and then you are reaching home after 1 hour, 2 hour, पता नहीं कितने घंटे बाद पहुंचते हो आप लोग. So, from school to home. So, the length of this whole path, इस पूरे path का जो आपका length होगा, that is known as distance. So, length of the whole path, और आप कह सकते हो total path length. Total path length of an object is known as distance traveled by an object. So, the total path length of an object is known as distance traveled by an object. So, total path of a path length. Clear? So, now what is displacement? So, the straight line from position A to position B. So, the straight line is position A to B. क्यों? Because that will be the shortest distance. That will be the shortest distance. सोचो, कोई और पाथ सोचो कि आप यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर करके वापस आ जाते हो तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. सो आप कोई भी दूसरा अगर आप पाथ लेते हो then it mean it will increase the distance. तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा. सो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A to B. सो द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A to B है. यहाँ पे ये हमने किसका डेफिनेशन लिखा बेटा? ये हमने डेफिनेशन लिखा डिस्टेंस का. दिस इज डिस्टेंस. क्लियर? सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बोलो चलो जल्दी से. द शॉर्टेस्ट पाथ, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन. Smallest distance between first and last position of an object is known as displacement of an object. Displacement of the object. Clear? So, the total path length of an object is known as distance, but the smallest distance between the first and the last position of an object is known as displacement. तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी इंडिकेट करना पड़ेगा. सो इट विल बी फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पे तो आप डायरेक्शन कैसे इंडिकेट कर सकते? क्या कर ही नहीं सकते ना. ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वापस आ रहा है, ऊपर जा रहा है,
कौन सी डायरेक्शन? सो डिस्टेंस डू नॉट हैव ए डायरेक्शन, इट इज ए टोटल पाथ लेंथ, बट वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैव दी डायरेक्शन। तो हम जब स्कूल से घर जाते हैं तो हमारे घर पे मदर फादर पूछते हैं, तो हमारे घर पे मदर फादर में इतना टाइम क्यों लगा? वाई? बिकॉज दे आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब स्कूल से घर तो इतना ही तो है, लेकिन उन्हें समझाए कौन? दैट अवर पाथ लेंथ इज टू लार्ज, कि हम वहां जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, पूरे घूम फिर के आ रहे हैं। सो वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन कि भाई इतना ट्रैवल करने में तो कम लगेगा, बट उनको पता नहीं होता ना कि हमारा तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो दे आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअली वी आर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस। सो यहाँ पे ये चीज आपको फर्क पड़नी चाहिए। द टोटल डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, whereas displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between two position of an object. So this is position 1 and this is position 2, or A and B. First position, last position. बीच बीच में अगर आपने स्टॉप लिए that doesn't mean, लेकिन ये होना चाहिए। Now what is time? टाइम तो हमें पता है that it is measured in सेकेंड्स, मिनट, आवर्स, उसके दूसरे यूनिट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, आप आर लो, डे लो, वीक, क्लियर, ईयर, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हमें इतना पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम क्या है। सो आई थिंक यू कैन से दैट व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इसका आपको डिफरेंस लिखना है तो आप और भी कर सकते हो। इसका डेफिनेशन लिखा दोनों का। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन हाउ कैन वी इंडिकेट डायरेक्शन बाय राइटिंग 5 मीटर? दोनों का यूनिट क्या है? दोनों का यूनिट क्या है? मीटर। डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है बेटा? मीटर। सो हाउ कैन वी इंडिकेट बाय राइटिंग जनरली 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर? हम ऐसे इंडिकेट नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि यहाँ से लेके मुझे कैमरे तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो दैट विल बी सपोज 2 मीटर। So I am considering that suppose it is 2 meter. So I am moving forward, then distance 2 meter. देखो distance and displacement दोनों सेम भी हो सकते हैं, distance and displacement सेम भी हो सकते हैं। If from position C to position D, if you are moving on a straight path, तो यहाँ पे क्या होगा? जितना distance होगा उतना ही displacement होगा, because there is no difference in path length, कि straight line में जा रहे हैं। So when we are performing a linear motion, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, देन इट इज नोन एज लीनियर मोशन। एंड इन लीनियर मोशन जनरली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, कि उसमें बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन में हम ट्रैवल करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम, बट ऑन द रेदर थिंग्स कि हमने जैसे बोला कि यहाँ तक के कैमरा का डिस्टेंस क्या होगा? रेकॉर्डर का डिस्टेंस होता है 2 मीटर। सो इफ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इफ आई एम टेकिंग दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर, तो वहां पे डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। क्लियर? सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ तक कैमरा तक पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर। सो दिस वाज माय पोजीशन ए, नाउ दिस इज माय पोजीशन बी। नाउ फ्रॉम दिस पोजीशन टू पोजीशन बी मुझे आपको पढ़ाना भी है, तो कैमरा ऑन करके मैं वापस यहाँ पे आया। सो नाउ अगेन आई हैव मूव्ड टू द पोजीशन ए। पोजीशन ए गया, वापस आया, जाने का डिस्टेंस 2 मीटर, आने का डिस्टेंस 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस। नाउ हियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर, जाने का 2, आने का 2। तो पहले डिस्टेंस, पहली कंडीशन पे डिस्टेंस 2 मीटर था, दूसरी कंडीशन पे डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर। नाउ लेकिन दूसरी कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इफ आई एम मूविंग 2 मीटर, वापस यहाँ पे आया तो डिस्टेंस हुआ 4 मीटर, बट मेरी पहली पोजीशन भी है, लास्ट पोजीशन भी है। इट मींस आई हैवंट मूव्ड फ्रॉम माय पोजीशन। तो पोजीशन तो पहले भी ये थी, वापस पोजीशन ये आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 मीटर। 0 मीटर। आप सोचो कि यहाँ पे बोर्ड नहीं है, तो मैं वापस दूसरी डायरेक्शन में 2 मीटर जा रहा हूं, वापस दूसरी डायरेक्शन में 2 मीटर जा रहा हूं, तो थर्ड कंडीशन पे डिस्टेंस कितना होगा मेरा? 6 मीटर। बट व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड कंडीशन? इन द थर्ड कंडीशन माय डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर। 2 मीटर। क्यों? क्योंकि मैं यहां से ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन में सी की तरफ जा रहा हूं,
and that is also equals to 2 मीटर. तो डिस्टेंस कितना हुआ? A to B, B to A to C. So 2, 4, 6. तो डिस्टेंस इज 6. डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमें माइनस में इंडिकेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आगे जा रहे हैं तो भी 2 मीटर, पीछे जा रहे हैं तो भी 2 मीटर. कैसे पता चलेगा कौन सी तरफ 2 मीटर लेना है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है. सो इफ आई एम टेकिंग दिस एज ए 2 मीटर, देन ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन आई हैव टू टेक दिस एज ए -2 मीटर. माइनस प्लस कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं करता है, जस्ट प्लस एंड माइनस इंडिकेट द डायरेक्शन. उसमें कैलकुलेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन प्लस माइनस अगर आपको कहीं पे दिया है तो आपको क्या लेना है बेटा? आपको लेना है दैट इट इज एन डायरेक्शन. कि पॉजिटिव अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव. तो हम साइड वाइड में जा रहे हैं तो हम साइड वाइड की बात नहीं कर रहे. वी आर टेकिंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन. इट इज एन लीनियर मोशन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं. सो अनलेस एंड अनटिल वी आर गोइंग इन ए लीनियर मोशन, तो हमें सिर्फ प्लस माइनस की एक डायरेक्शन गया तो दूसरा एकदम उसका ऑपोजिट ही जाना है. उसमें कोई चेंज लेने की जरूरत नहीं है. उसमें कोई चेंज लेने की जरूरत नहीं है. सो लेट अस सॉल्व द फ्यू एग्जांपल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ताकि पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है. क्लियर? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. सी, from this position, from position A, I am moving in a straight line path to position B, and that is equals to from A to B, that is equals to 400 meter. 400 meter. From position B to position C, that is again 100 meter. From B to C कितना है बेटा? B to C है that is 100 meter. Now from C I am moving in the opposite direction 200 meter. तो यहाँ पे D पे पहुंचा. So C to D कितना है? C to D that is 200 meter. 200 meter. See what is the type of motion? यहाँ पे linear motion है. When I am moving from A to B in a straight path, that is 400 meter. B to C 100 meter. C to D again 200 meter. So after my final position, what is the distance traveled? What is the distance traveled and what is my displacement? What is my displacement? चलो सोचो, what is the distance traveled and what is displacement? Distance कितना है? तो पहले तो यहाँ से A to B गए, so A to B is that is 400. Then again B to C गए, that is again 100. That is 4 plus 5. 4 plus 100 that is 500. C to D again आए, तो C to D that is 200. So total distance is 400 plus 100 plus 200, and that is equals to 4 plus 1 5 plus 2 700 meter. 700 meter. What is displacement? Displacement में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. What is first position? First position is A. What is the last position? Last position is D. And what will be the distance from A to D? तो देखते हैं कि यहाँ से A से लेके B का डिस्टेंस है 400. B to C है 100. B to C कितना है? 100. अभी C to D मतलब ये टोटल हुआ 500. टोटल कितना हुआ? 4 plus 1 that is 500. नाउ वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कितना आ रहा है? सो D to C that is 200. So 500 minus 200. So that will be equal to 300 meter. 300 meter. So our distance is 700 meter and our displacement is 300 meter. 300 मीटर. तो उतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा. तो ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए. क्लियर? जल्दी से जिनको लिखना है लिख लो. ऐसा हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो, वापस समझो क्वेश्चन को, रिवाइंड करो अगर समझ में नहीं आया तो, है ना. चलो तो कुछ ऐसे एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए. देखो यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिखा देता हूं. दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो फ्रॉम ए टू बी आई एम मूविंग 100 मीटर ईस्ट. सो हियर इट इज बी. फ्रॉम देयर आई एम मूविंग 100 मीटर टू north. Find the distance
and find the displacement. चलो इसमें थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं. क्या चेंज कर सकते हैं? 100 की जगह हम ले सकते हैं 300. यहाँ पे आपको दे देता हूँ 400 ताकि आपका कैलकुलेशंस थोड़े से इजी हो जाए. चलो 300, 400. So the distance is quite simple, A to B and B to C. That is 300 plus 400. That will be equals to 700 meter. Now the displacement क्या होगा? A to C. So this will be a right angle triangle. This will be hypotenuse. So simple, AC square. So AC square is equals to AB square plus BC square. So that is 300 square plus 400 square. 3 square 9, 40 plus 4 square 16, again 40 as it is square. 2 0 से square करेंगे तो 4 0 हो जाएंगे. So it is 25 and 4 zeros. ये क्या मिला हमें? AC square मिला. If I want to find the AC, अगर आपको AC ढूंढना है बेटा, then you have to root on both the sides. You have to do the root. 25 का root क्या होगा? 25 का root होता है 5 और 4 zeros के root करेंगे तो हो जाएंगे 2 0. That is 500 meter. So the hypotenuse will be 500 meter. तो हमारा distance होगा 700 meter, but the displacement is 500 meter. 500 meter. Clear? तो इतनी चीजें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए. What is distance and displacement? Now another one example. An object is moving in a circular path. कौन सा path है बेटा? Circular path. यहां से और travel करता है from A. In a circular path of radius is 50 meter. Radius is 50 meter. यहां से start करता है. It goes on circling 3 rounds, 3.5 rounds. कि भाई एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, तीसरा राउंड लगाया and exactly 3.5. So what is the distance? And what is displacement? अगर कोई सर्कुलर राउंड पे घूम रहा है और उसकी रेडियस कितनी है? 500 मीटर. तो एक सर्कल पे घूमने का डिस्टेंस कितना होगा? एक बार घूमने का. So that will be the circumference. And what is the formula for the circumference? Circumference होता है 2 pi r. So what is 2 pi 314 upon 100 into r. 3.14 होता है इसलिए मैंने 314 upon 100 लिख दिया. और r कितना है बेटा? It is 50. So 2 1s are 2 50s are 50 कट हुआ, सिर्फ बचा 314. So the circumference कितना है? 314 मीटर. So what is distance? कितने राउंड लगाए? तो राउंड लगाए 3.5 into circumference कितना होगा? 314. तो यहाँ पे पॉइंट हटाओ, डिवाइड बाई 10 कर दो. तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई या तो फिर पहले कट कर सकते हो. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 258 जा 314. तो यहाँ से 2 से कट कर सकते हो. नाउ 158 into 7, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 0 4 कैरी, 7 1 जा 7, 1106 मीटर. एक बार देख लेना, मैंने ओरली कैलकुलेट किया है, आप एक बार रफ करके कैलकुलेट कर लो. आई थिंक इट विल बी 1106 मीटर. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखो वो तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है कि 3.5 राउंड लगाए तो 3.5 इंटू सर्कमफरेंस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा. बट द मेजर थिंग इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो इट इज ए सिंपल पाथ फ्रॉम A to B एंड दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर. डायमीटर यानी 2 बार रेडियस, क्योंकि फ्रॉम हियर दिस वन इज आल्सो रेडियस and from there this one the below part is also radius. तो displacement क्या है? that is equals to 2r, क्योंकि r plus r 2r लिख सकते हो या तो फिर r plus r, that is 50 plus 50, that is equals to 100 मीटर. क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन स्ट्रेट पाथ है, that is radius. तो ये हुआ 100 मीटर. डिस्टेंस कितना हुआ? क्योंकि इसने 3.5 राउंड्स लगाए थे. कितने? 3.5 राउंड्स. तो 3.5 राउंड यानी पहले राउंड का डिस्टेंस कितना हुआ?
314, दूसरे का अगेन 314, तो पहले का 314, दूसरे का 314 एंड तीसरे राउंड का भी 314, और उसने ऊपर का हाफ राउंड लगाया, हाफ राउंड का इसका हाफ, दैट इज 158। तो इन सब का टोटल करेंगे तो आई थिंक आंसर विल बी 4 + 4 8 + 4 12, 12 + 8। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आई थिंक कैलकुलेशन कुछ गलत किया हमने, देख लो एक बार कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या हुआ है, 3.5 इंटू 2 पाई आर आपको करना है, द रेडियस इज 50, यहाँ पे भी हमने सही किया है 3.14, 50 कट किया, इट इज करेक्ट थिंग। चलो तो आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे 158 नहीं होगा, 157 होगा, सो दिस इज सिंपल, 158 नहीं होगा 157 होगा, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। क्लियर? सो दैट वाज अ क्वाइट सिंपल मिस्टेक। यहाँ पे 158 की जगह क्या लेना है 157, क्योंकि 2 से कट करेंगे 314 को, तो द आंसर विल बी 157, द आंसर विल बी 157। सो हियर इट विल बी 4 + 4 + 4, 12 + 7 9, 1 carry, 5 6 7 8 9, again it is 9, 3 3 3 9 1099, the answer will be 1099 मीटर, 1099 मीटर। तो आपको उतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? होप सो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो इतनी ही चीज़ें हमारे पास, उतना ज़्यादा नहीं है कुछ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जितने भी आपके पास इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए टेक्स्ट बुक में वो सारे सॉल्व करो। राइट ए नोट ऑन डिस्टेंस, राइट ए नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशंस मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिए थे। अगेन राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विथ एग्जांपल्स। Try to solve the numericals and questions given in the in text as well as in the exercise. Clear? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जल्दी से ये चीज़ करते रहो बेटा। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। टोटल पाथ लेंथ लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी लेते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर लीनियर मोशन, कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं उसी हिसाब से हमें स्टार्ट करना है, तो हमारे लिए कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाएंगे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखे, स्ट्रेट लाइन पाथ वाला देखा, सर्कुलर पाथ वाला देखा, फिर हमने डायरेक्शन के हिसाब से देखा। तो इसी तरीके से जब भी सर्कुलर पाथ आता है तो आपको किसके हिसाब से जाना है, सरकमफरेंस। एंड व्हाट इज सरकमफरेंस, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के हिसाब से आप सरकमफरेंस निकालो। डिस्टेंस फाइंड करना है तो कितना राउंड लगा है उस हिसाब से डिस्टेंस फाइंड करो। एंड डिस्प्लेसमेंट अगर यहीं पे आ जाता तो कि 4 राउंड्स कंप्लीट कर लेता, तो 4 राउंड्स कंप्लीट कर लेता तो यहाँ पे 157 की जगह आपको और एक बार 314 ऐड करना होता, तो डिस्टेंस बढ़ जाता। लेकिन वापस अगर वो ऑब्जेक्ट ए पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर वो वापस यहीं पे आ जाते हैं तो फर्स्ट पोजीशन इज ऑल्सो ए एंड लास्ट पोजीशन इज ऑल्सो ए, सो द डिस्प्लेसमेंट देयर वुड बी अ बीन 0। कि अगर वहीं पोजीशन पे हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट 0। आज मैं स्कूल में हूँ, कल वहाँ पे पूरा घर वर घूम गया, पूरा गाँव घूम लिया, पूरी चीजें आ गई, वापस इफ आई एम एट दिस स्कूल देन my displacement will be 0. क्यों? क्योंकि my first position is also here and the last position is also here, so I am not moved from my position. The distance between first and last position is 0, but the total path length that I have moved, that will be something. तो distance कभी भी 0 नहीं हो सकता है, distance कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दिस पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट वेर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कि आप आगे बढ़ो पीछे जाओ कहीं पे भी जाओ, डिस्टेंस ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट वेर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। और ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होगा बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड इक्वल टू डिस्टेंस, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एंड वेयरएज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है थोड़ा सोचो, और वहीं आपका नोट्स में आज लिखना है बेटा। तो आप सोचते हो कि क्या क्या लिखे, तो यही जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए पूरे लेक्चर में, वहीं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। थैंक यू।